वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो there are so many application of derivatives. As we know, a derivative, differential coefficient of a function, is nothing but it is basically the instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable. Means this dy by dx, this is called derivative of a function. Means अगर आपके पास एक फंक्शन है y is equal to f of x, then dy by dx is equal to f dash x, ठीक है। So this is called instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable. यहाँ पे देखिए y is equal to f of x a real valued function, ठीक है। So dy by dx means it's a rate of change of y with respect to x, where y is dependent variable and x is independent variable. Application of derivatives में हमें क्या पढ़ना है? What are the applications of derivatives? There are so many applications of derivatives, and number one application is derivative as a rate measure. We can rate measure. Means with the help of derivative we can measure the rate of a function, rate of change of one variable with respect to another, ठीक है। We have one more application, means that is we can check whether the function is increasing or decreasing, whether the function is strictly increasing or strictly decreasing function. We can find equation of tangents and equation of normals with the help of this derivative. There is one more application we can find, that is we can find slope of a tangent and slope of a normal, ठीक है। We can find approximation values, we can find approximate values of functions. With the help of this derivative we can find maximum and minimum values of a function, ठीक है। So the number first application is that is derivative as a rate measure, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कैसे डेरिवेटिव ऑफ ए रेट मेजर करेंगे यूज़। सो आपको क्या लिखना है? पहले डी वाई बाई डी एक्स इज द रेट, डिफ्रेंसिएशन ही करनी है बस। आपकी एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे क्या करना है कि हाउ ए फंक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज लेंगे, आपकी एक्सरसाइज है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है यहाँ पे, तो आप यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर देख सकते हो बेटा। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको? क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू, you have to find, it is question number 1. Question is, you have to find rate of change of area of a circle with respect to its radius. As we know that the area of a circle and the circumference of a circle, they are directly proportional to the radius. Means they wholly and solely depends on radius of the circle. If we increase the radius, the area gets increased. If we increase the radius, the circumference gets increased. If we decrease the radius of a circle, the area of a circle also decreases. If we decrease the radius of a circle, the circumference of a circle also decreases. So area and circumference, they are dependent on radius of a circle. अब क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, एंड व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पहला पार्ट है यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बेटा कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस? आपको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल. Let's consider what is area of a circle. This A denotes area of circle, and we know that area of circle is pi r square. So we can write A is equal to pi r
स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस। इफ आई राइट डी ए बाई डी आर, ये डी ए बाई डी आर क्या डिनोट करेगा बेटा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या करता है, डिनोट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए बाई डी आर क्या चेंज, क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर। बट ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द सर्कल। आर क्या है, आर इज एरिया ऑफ सर्कल। आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सो डी ए बाई डी आर मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू दिस रेडियस। बट एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे डी ए बाई डी आर, ए पाई आर स्क्वायर। ये जो ए है, ये जो पाई है यहाँ पे, दिस पाई इज द कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट। वी कैन राइट पाई एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, वी नो दैट derivative of x raised power n is n into x raised power n minus 1, power down power minus 1. So derivative of this r square is 2r, ठीक है। सो क्या लिखेंगे बेटा, डी ए बाई डी आर इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब when r is equal to 3 सेंटीमीटर, r is equal to 3 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर क्या आएगा बेटा, शाबाश, डी ए बाई डी आर मीन्स व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई, आर को रिप्लेस करना है 3 से, इंटू 3 दैट इज 6 पाई। अब यूनिट क्या आएगा बेटा, देखो बेटा इसका मतलब क्या है, डी ए बाई डी आर व्हेन आर इज इक्वल 3 सेंटीमीटर 6 पे, अब यूनिट भी लिखना है, इट विल बी 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, समझा आपने। मीन्स वो सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर चेंज करने से, चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, उसका 1 सेंटीमीटर चेंज करने से जो उसका एरिया होगा वो कितना चेंज होगा, 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, आपने मेरी बात समझी। वो सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर चेंज करने से उसका जो एरिया है वो कितना चेंज होगा, रेडियस अगर हम इफ़ वी चेंज द रेडियस बाई 1 सेंटीमीटर, द होल एरिया will change by 6 pi square centimeter. This is the rate of change of area with respect to radius. Clear? इसके बाद जैसे हमें यहाँ पे पता है चेंज में भी पॉजिटिव, इफ़ आई राइट डी वाई बाई डी एक्स, जो मैंने आपको एक पेज भेजा था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़, ये पॉजिटिव होगा, कब चेंज पॉजिटिव होगी, इफ़ वाई इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, if y increase as x increases and this dy by dx it is negative, कब होगा बेटा, ये कब नेगेटिव होगा, if y decreases as x increases और if y increases as x decreases, ठीक है, ये कब हो, ये उस वक्त ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यही है कि डी ए बाई डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट है इसका, कितना होगा बेटा, that will be 2 dA by dr, it's 2 pi r square centimeter per centimeter. So when dA by dr is 4 centimeter, so we can write here it is 2 into pi into 4, that is 8 pi. अब एरिया का यूनिट क्या आएगा बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। अब वो सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, अगर उसका 1 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो जो इसका टोटल एरिया होगा वो कितना चेंज होगा, वो 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। क्लियर, तो ये आपने समझे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम तो पहली बात, जब भी सर्कल्स की बात आएगी, यहाँ पे सरकमफ्रेंस, कितना सरकमफ्रेंस चेंज होगा रेडियस को चेंज करने से, कितना एरिया चेंज होगा रेडियस को चेंज करने से। सो वी मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज 2 पाई आर। तो बेटा ये आप याद रखोगे कि एरिया
एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज दिस पाई आर स्क्वायर एंड दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। ये आपको सर्कल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा, तो ये दो फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज the volume of a cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ठीक है, तो बेटा क्यूब की बात आई यहाँ पे, एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब it is always edge cube. It is always edge cube. If edge is x, edge cube. The volume of cube is always edge cube. If x is edge of a cube, cube and cuboid में यही फर्क है बेटा, क्यूब के सारे तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड के डिफरेंट होते हैं बेटा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एज क्यूब, क्लियर। If edge of the cube is x, then volume of cube will be x cube, ठीक है। So we let's at any instant of time, or let's take at some time t, the edge of cube x, surface area b s, and the volume is, so we can use let v s and x are volume of cube, surface area of cube, and edge of cube respectively, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cubic centimeter per second. So with respect to time, so given condition is here, dv by dt is equal to 8 cubic centimeter per second. This is the given condition. क्या है dv by dt? Rate of change of v with respect to time means rate of change of volume of cube with respect to time is 8 cubic centimeter per second. Means a positive है, so the volume of cube increases at the rate of 8 cubic centimeter per second. Question क्या है, how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? When the length of an edge is 12 centimeter. अब आपको सरफेस एरिया कितना चेंज होगा with respect to time, लेकिन जो एज है उस टाइम एक क्यूब की जो एक एज होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो उस लेट्स टेक, हमने ये x लिखा है, x इज एज ऑफ द क्यूब, सो व्हाट इज दिस s means surface area of the cube, and we know that surface area of cube is 6 times edge square, so we can take it as 6 times x square or 6x square, and v is volume of cube, that is x cube, ठीक है बेटा। so we can write what is dv by dt, अगर v x cube है dv by dt कितना होगा, therefore यहाँ पे लिखेंगे बेटा dv by dt is equal to 3x square, rate of change of volume, ठीक है, rate of change of volume with respect to time, but here x is a function of time, into dx by dt, ठीक है, dx by dt। अब यहाँ पे लिख सकते बेटा, but dv by dt is 8, so we can write 8 is equal to 3x square into dx by dt, ठीक है। so we can write here dx by dt is equal to 8 divided by
3x स्क्वायर, ये हमें आगे काम आएगा. सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ऑफ द क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dx by dt इज़ हियर. मैंने ये 3x स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट किया. सो इट इज़ dx by dt. अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड ds by dt. सो व्हाट इज़ दिस ds by dt? ds by dt will be 12x into dx by dt. That is rate of change of s with respect to time, where s is surface area of the cube. It is 12x into this dx by dt. dx by dt का वैल्यू क्या है? 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर. ये 1x कैंसल, 3 4 are 12. That is ds by dt is equal to 8 4 are 32 divided by x. 32 divided by x. ठीक है बेटा. सो इट इज़ 32 डिवाइड बाई x. बट यहाँ पे देखिए बेटा, अगर यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ सो 8 by 3x square, 32 by x square. Now rate of change of this, so we can write here ds by dt when x is ds by dt when x is 12 centimeter. Question क्या है बेटा? So find the rate of how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter. So ds by dt at ds by dt नहीं, x क्या नहीं आएगा. ds by dt is only x. x स्क्वायर x कैंसिल, एक हो जाएगा बेटा. सो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ 6x स्क्वायर 12x into dx by dt, that is 8 by 3x square. x cancel, 3 4s are 12, 4 8s are 32 divided by x. It is only 32 divided by x. ठीक है. सो ds by dt when x is equal to 12 centimeter is equal to 32 divided by 12. So it is 4 8s are and 4 3s are. अब यूनिट क्या आएगा बेटा? एक तो यूनिट सरफेस एरिया मीन्स कितना चेंज होगा, सरफेस एरिया कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. 8/3 सरफेस एरिया की बात है तो स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो वो क्यूब जिसका एक एज 12 सेंटीमीटर होगा और जिसका वॉल्यूम 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, उसका जो सरफेस एरिया कितना तेज़ फास्ट होगा? 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन्स एक सेकेंड में उस क्यूब का जो सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टाइम कितना चेंज होगा? 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर. So this rate of change of surface area of cube with respect to time is simply it is 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड. वैसे इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस है, वो आप कर सकते हो बेटा. या इंशाल्लाह जो नेक्स्ट यूनिट आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा. तब तक आप अच्छे से रहे, इस वीडियोज़ को देखिए, अच्छी तरह से वीडियोज़ को देखिए और घर में आप इन सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. आपके पास बुक वगैरह है, जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनका आर्टिकल देखिए आप, तो आप इंशाल्लाह इसको करोगे. थैंक यू वेरी मच.